Greetings for the day, students. We are here to discuss web designing in your syllabus 11th IT. We have a unit that is called as Impressive Web Designing, unit number 3 as per your syllabus. My name is Simran Kaur. I'll be taking you through the entire unit where we'll be learning how to design impressive websites. Now, when we talk about web, this is the term which is being used in our day-to-day lives. Okay, we are all talking about web. Now when I say web, web is nothing but what all we see on internet. Okay, so whatever we are browsing, whatever we are viewing on the internet is nothing but web. Now when I say web, in technical terms, web is nothing but www. Whatever is available for the users are all captured and stored at www. www stands for World Wide Web. So here we are talking about that whatever is being approved by the internet, whatever is being displayed on the internet, it is being approved by www and we as a users are able to view it. Okay, so here we need to understand that how the web is working. कैसे समझ में आएगा कि वेब काम कैसे करता है. When we say that we need to design websites, we need to understand कि जब हम as a user, as a designer website बनाएंगे तो वो website को www पे after putting that website on internet, how the users, the clients are accessing those websites. To understand this, there is a neat diagram given in your textbook on page number 30. You can have a look on that. You can refer page number 30 from your textbook. I'll be making you understand that how the particular web system is working. So this is one computer. For example, this is my computer, me as a user or as a client, and this is one computer that is called as server. अब ये चीज़ें बहुत बार पिक्चर में आती है. व्हेन वी आर सर्फिंग सर्टन वेबसाइट्स वी से कि सर्वर का प्रॉब्लम है, लोड नहीं हो रही है, या देयर इज अ ह्यूज नेटवर्क ट्रैफिक एट द एंड ऑफ द सर्वर. सो व्हाट इज दिस सर्वर एक्चुअली? सर्वर इज नथिंग बट a computer where www is storing its websites. ठीक है, यानी अगर आपने एज अ वेबसाइट डिजाइनर कोई वेबसाइट क्रिएट की है, कोई वेबसाइट बनाई है एंड यू हैव पुट इट ऑन द इंटरनेट, तो इंटरनेट क्या करता है, उसको अपने क्लाइंट्स के अवेलेबिलिटी के लिए किसी एक पर्टिकुलर कंप्यूटर पे सेव करके रखता है. दैट थिंग इज कॉल्ड एज सर्वर. Okay, client is a user machine, server is that machine that stores the entire websites which is available on www. Now how these two computers are communicating, that is nothing but understanding the working of web. Okay, so client, very first step क्या हो रहा है, client एक request भेजता है server को. ठीक है, मैं अगर इंटरनेट एक्सेस करना चाहती हूँ, so what I'll do is I'll be opening my web browser, I'll be typing my domain name. ये दो चीजें अंडरस्टैंड करना जरूरी है when we are talking about the client request to the server. The two things are, first is web browser and the second thing what I called is domain name. जब मैं वेब ब्राउजर की बात करती हूँ तो वेब ब्राउजर इज नथिंग बट द इंटरफेस दैट मेक्स वेबसाइट्स विजिबल टू द यूजर. जैसे हम ओएस की बात करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम इज द इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर. यानी अगर आप कोई कंप्यूटर बाय करते हो और उसको यूज करना स्टार्ट करते हो तो बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर डजंट अंडरस्टैंड व्हाट लैंग्वेज वी कम्युनिकेट इन, राइट? वी ऑल नो दैट कंप्यूटर इज वर्किंग ऑन बाइनरी लैंग्वेज. इट अंडरस्टैंड्स ओनली जीरोज एंड वंस. तो हर चीज जो भी आप इनपुट देते हो कंप्यूटर को, वो लैंग्वेज इज बीन कन्वर्टेड इनटू द बाइनरी कोड.
ये सब कौन करता है? दिस थिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ ओएस. जैसे हम ओएस की बात करते हैं, विदाउट ओएस यू कैन नॉट यूज अ पर्टिकुलर हार्डवेयर. इन द सेम मैनर व्हेन आई टॉक अबाउट वेब ब्राउजर क्या करता है? यूजर जो इनपुट देगा उसको लेके इट विल कनेक्ट टू द पर्टिकुलर सर्वर. यानी विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउजर ओनली यू कैन कम्युनिकेट, यू कैन टॉक टू द सर्वर, यू कैन एक्सेस द इंटरनेट. सेकेंड, domain name. Now what is domain name? For example, if the client is requesting Google website, ठीक है, www.google.com, तो client should know this particular thing, right? This particular domain कि मुझे Google access करना है, so that is domain name. So first step, what we need to understand is request, client request to the server. Client is requesting to the server that this particular domain website I want. Now this server is called as domain name server, जहाँ पे domain के हिसाब से websites रखी जाती हैं, सेव की जाती है. तो when the client is sending the request to the server, client क्या कर रहा है? It is making use of two things, web browser and domain name, and it is pinging the server that I want to access this particular website. अब आते हैं सर्वर साइड पे. जब सर्वर को रिक्वेस्ट मिली कि हमें दिस पर्टिकुलर यूजर इज आस्किंग दिस, तो व्हाट विल सर्वर डू? सर्वर सबसे पहले चेक करता है व्हाट इज द आईपी एड्रेस ऑफ द पर्टिकुलर क्लाइंट. हम जब इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं तो हमारी जो इंटरनेट जिस पर्टिकुलर डिवाइस पे यूज किया जा रहा है, दैट डिवाइस कम्स विद एन आईपी एड्रेस. जब भी आप इंटरनेट पे काम करते हो तब जिस नाम से आप काम कर रहे हो दैट इज नथिंग बट आईपी एड्रेस. आप जब इंटरनेट पे काम करते हो तो आपकी मशीन को रिकॉग्नाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ आईपी. इट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस. ठीक है, देर आर टू एड्रेसेस दैट आर बीइंग एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर कंप्यूटर. वन इज कॉल्ड एज आईपी एंड सेकंड इज कॉल्ड एज फिजिकल और मैक एड्रेस. तो फिजिकल मैक एड्रेस जब मशीन मैन्युफैक्चर होती है तब मिलता है, और आईपी एड्रेस जब मशीन इंटरनेट कनेक्टिविटी में आती है तब उसको प्रोवाइड होता है. ठीक है, तो जैसे ही क्लाइंट ने रिक्वेस्ट दिया दैट आई वांट टू एक्सेस www.google.com, सर्वर सबसे पहले चेक करता है दैट व्हाट आईपी एड्रेस इज रिक्वेस्टिंग दिस पर्टिकुलर डोमेन फ्रॉम मी. ठीक है, जैसे ही उसको आईपी एड्रेस मिल जाता है तो क्या करता है स्टेप, उसको गूगल एक्सेस देता है. ठीक है, नेक्स्ट अगेन क्लाइंट क्या करता है, अगेन द क्लाइंट इज रिक्वेस्टिंग, फॉर एग्जाम्पल गूगल पे जाके क्लाइंट ने टाइप किया Amazon. ठीक है, तो ये अगेन क्लाइंट की रिक्वेस्ट गई सर्वर के पास. सर्वर ने क्या किया, Amazon का पेज उठा के क्लाइंट को रिस्पॉन्स दिया. दिस इज स्टेप नंबर 4, दैट इज रिस्पॉन्स. So this is how client and server are reacting with itself. This is how your web is working. We need to understand the thing that request and response are the two ways in which client and server machine is talking to themselves. कैसे communication हो रहा है? It is with the help of request and server is responding to that client request. Okay, now after we understood that what is working of web, we need to understand that there are certain components that are being required when you have to publish your website on internet. जब आप कोई वेबसाइट डिजाइन करने की कोशिश कर रहे हो और उस वेबसाइट को इंटरनेट पे डालना चाहते हो, so there are certain components of web. ठीक है, उस कंपोनेंट की हेल्प से you can design the website and you can publish the website on internet. So what all things are required, we'll understand that. First component is HTML. अब जब हम www की बात कर रहे हैं, हम क्या सर्च करते हैं, क्या सर्फ करते हैं? वी आर सर्फिंग डिफरेंट वेबसाइट्स ऑन वेब. ठीक है, हर वेबसाइट इज बीइंग डिजाइन्ड विद द हेल्प ऑफ वेब पेजेस. ठीक है, 1, 2, 10, 100 ऐसे वेब पेजेस को डिजाइन करके एक एक ग्रुप के अंदर, एक सेक्शन के अंदर कोलैबोरेट करके दे आर क्रिएटिंग वेबसाइट्स.
तो जो इंडिविजुअल पेजेस हैं दैट आर नथिंग बट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, दैट आर नथिंग बट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ अ वेबसाइट. तो ये वेब पेजेस बनाए कैसे जाते हैं? इट इज डन विद द हेल्प ऑफ HTML. अब आप लोगों ने, सब लोगों ने सुना होगा कि जैसे हम लोग सॉफ्टवेयर्स की बात कर रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर क्या करता है? सॉफ्टवेयर with the help of software we are able to use different things. Banking देखो आप, online shopping देखो, all these things are done with the help of online software. तो softwares बनाने के लिए हम क्या बोलते हैं? We are requiring programming languages. ठीक है. इन द सेम मैनर जब मैं बोल रही हूँ कि वेब पेजेस डिजाइन हो रहे हैं, तो वेब पेजेस को डिजाइन करने के लिए जो चीज यूज की जाती है दैट इज कॉल्ड एज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. स्क्रिप्ट, ठीक है. अगर मुझे कोई प्ले करना है तो व्हाट द राइटर डज, ही राइट्स द स्क्रिप्ट. दैट मीन्स डायलॉग टू डायलॉग कैसे होगा. इन द सेम मैनर जब आपको कोई वेब पेज डिजाइन करना है तो वेब पेज में व्हाट इज रिक्वायर्ड इज the scripting language. With the help of scripting language you will be designing HTML pages. ठीक है. अब scripting language is not a programming language. आप किसी भी scripting language के साथ काम करो, that scripting language is never assumed as a programming language. It is not doing any kind of programming inside that thing. ठीक है. Now again what is important to understand is कि scripting language काम कैसे करती है. We will be looking into how HTML is working. मैंने बताया web pages, first component web pages is designed with the help of HTML. ठीक है. Now we'll be discussing HTML more deeply when we come across how to design a web page. Second element or component of web is called as website. पहला कंपोनेंट, सबसे छोटा कंपोनेंट हो गया वेब पेज. उस वेब पेज को 10 वेब पेजेस डिजाइन करके उसको ग्रुप करके हमने एक वेबसाइट बना ली. सो सेकेंड कंपोनेंट इज नथिंग बट वेबसाइट कंपोनेंट ऑफ इंटरनेट. क्लियर. तो वेबसाइट क्या करेगा? इट विल कंटेन कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस. ओके. कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस विल कम अंडर वेबसाइट. जब मैं बात कर रही हूँ कलेक्शन की, इफ यू पीपल हैव सीन योर कॉलेज वेबसाइट, जब आप देखते हो www.mkhsanchetischool.com, सो व्हेन यू कम इन दैट पर्टिकुलर वेबसाइट, तो आप देखोगे कि उस वेबसाइट में देयर आर मल्टीपल यू कैन से interlinked pages. Interlinked is the term we need to understand here. When I say MKH Sancheti school की website, so when you go to that particular website there is a home page. Besides home page there are certain tabs given which are clickable. ठीक है. You have about section, you have career section, you have courses section, you have contact us section. So there are certain sections जो clickable होते हैं. clickable मतलब जब आप उस section पे जाते हो, क्लिक करते हो, तब आपकी एंटायर आपका जो सर्वर है वो आपको उस पर्टिकुलर सेक्शन के दूसरे वेब पेज पे जाके ड्रॉप करता है एंड दैट वेब पेज इज विजिबल टू ऑल. सो ये जो होता है दिस इज कॉल्ड एज इंटरलिंकिंग ऑफ पेजेस. ठीक है. दैट मीन्स यू कैन गो एनीवेयर when you are surfing a website. It is not mandatory for a particular person to go one by one. ऐसा होता है कि किसी वेबसाइट को हमने ओपन किया और उसमें लिखा है कि नहीं आपको पहला पेज ही पहला देखना पड़ेगा, उसके बाद ही यू कैन गो टू सेकेंड पेज. दिस इज नॉट द वे. सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस फॉर डिजाइनिंग वेब पेजेस. थर्ड कंपोनेंट we'll talk about is web browser. Now when I talk about web browser in the similar way जैसे हमने OS को देखा, operating system is used as an interface between the user and the computer. यानी अगर आप कोई हार्डवेयर खरीद रहे हो for accessing internet, then you have to have an OS that will make the client give the input. It will translate it into the computer language and give that translated input to the computer. कंप्यूटर से जो आंसर मिल रहा है दैट वुड बी अगेन इन कंप्यूटर्स लैंग्वेज, दैट इज बाइनरी. तो ओएस क्या करेगा, उसको
कन्वर्ट करेगा, ट्रांसलेट करेगा इन द सेम लैंग्वेज इन विच यूजर हैज गिवन दैट इनपुट. सो ये जो चीज है, दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउजर्स. विदाउट वेब ब्राउजर यू कैन नॉट एक्सेस इंटरनेट. There are different types of web browsers available in the market. Examples are Chrome, Firefox, Safari, Opera, Internet Explorer. So as per the compatibility of your hardware, you can use different web browsers for your convenience. Now web browser में there is one more thing to keep in mind. Web browsers fetch कैसे करता है कोई particular website? How is that particular web browser fetching the particular website which the client is requesting? कैसे? ठीक है, यानी हमने जब पहले एग्जांपल देखा था कि क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया सर्वर को एंड ही इज आस्किंग टू कम विथ www.google.com पेज, राइट. अब कैसे समझ में आया, कैसे वो रिक्वेस्ट गई? दैट थिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटोकॉल. ठीक है, दैट प्रोटोकॉल इज कॉल्ड एज HTTP. HTTP stands for Hypertext Transfer Protocol. ठीक है, when we are understanding internet, there are certain layers in which internet is working. ठीक है, तो हम जिस लेवल पे या जिस लेयर पे काम करते हैं, दैट इज द हाईएस्ट लेवल, 7th लेयर ऑफ द इंटरनेट, दैट इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन लेयर. ठीक है, तो हर लेयर पे, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 7 लेयर्स, हर लेयर पे देर आर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स दैट आर वर्किंग. On the application layer, we are actually dealing with HTTP, that is Hypertext Transfer Protocol. यही प्रोटोकॉल की हेल्प से क्लाइंट सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन होता है. When you जब आप कोई वेबसाइट को सर्च करते हो, जैसे हम क्या डालते हैं, www.google.com, बट जैसे ही आप google.com पे हिट करोगे, एंटर करोगे, तो बाय डिफॉल्ट आपको जो दिखता है प्रिंटेड इन दैट पर्टिकुलर सेक्शन, इट इज http:// and your website name. So that means HTTP is the protocol जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट को सर्वर तक लेके जा रहा है और सर्वर से रिस्पॉन्स को क्लाइंट तक लेके आ रहा है. We'll be understanding more about the protocols, but as of now, what is required is to understand that web browser is the essential component when you need to access the internet, and how the communication is done within the client and server machine. It is always done with the help of HTTP. HTTP stands for Hypertext Transfer Protocol. Now, 4th major component of the web is URL. You people might have heard, इसके पहले भी बहुत जगह पे पढ़ा होगा URL या सुना होगा URL. So URL is nothing but यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, दैट इज द 4th component, URL. So it stands for यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. अब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का काम क्या है? ठीक है, हम बोल रहे हैं URL. ठीक है, जब मैंने बोला http://www.google.com, ठीक है, दिस कंप्लीट एड्रेस इन योर वेब पेज. जब आपने फॉर एग्जांपल क्रोम स्टार्ट किया, तो यहाँ पे ऊपर यू गेट द टैब्स, यहाँ पे आपका जो भी इंटरनेट एक्सप्लोरर का सिंबल या क्रोम का सिंबल है, और यहाँ पे आप टाइप करते हो www.google.com. ठीक है, तो जब एंटर हिट करते हो तो वो एंटायर वेब पेज का URL आ जाता है यहाँ पे, एंड यू कैन डायरेक्टली सेव दिस URL. हम लोग जो यूट्यूब की लिंक्स आती है हमारे सेलफोन्स पे, जब हम उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली वही स्पेसिफाइड वीडियो स्टार्ट होती है. ये कैसे होता है? दिस इज द जॉब ऑफ URL. URL क्या करता है? स्पेसिफिक नाम से वेब पेजेस को सेव करके रखता है, और अगर आप वो पूरा URL टाइप कर रहे हो तो आपको मेजर जो मेन पर्टिकुलर वेबसाइट है उस पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती. यू आर डायरेक्टेड टू दैट स्पेसिफाइड पेज. सो दैट थिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ URL. URL का जॉब होता है कि ओरिजिनल लोकेशन पे क्लाइंट को, यूजर को लेके जाना ऑफ दैट पर्टिकुलर वेबसाइट. क्लियर? नेक्स्ट इज वेब सर्वर. अब वेब सर्वर क्या करता है? वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द वेब सर्वर इज डूइंग. ठीक है, हमने बात की पहले क्लाइंट की, उसमें हमने वेब पेजेस डिजाइन कर लिए यूजिंग HTML. उसके बाद हमने उन वेब पेजेस को कोलैबोरेट कर लिया, इंटीग्रेट कर लिया अंडर वन हेड. जैसे मुझे अगर अपने नाम से कोई वेबसाइट बनानी है तो मैंने उसके अंडर के सारे वेब पेजेस को डिजाइन करके उसको कोलैबोरेट करके आई हैव मेड माय वेबसाइट.
नेक्स्ट वॉज वेब ब्राउजर, जिसकी हेल्प से यूजर विल बी एक्सेसिंग दैट पर्टिकुलर वेबसाइट. फिर हमने यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर पढ़ लिया कि हर वेबसाइट के हर डिफरेंट पेज का देयर इज अ डिफरेंट यूआरएल जो यूजर्स डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं. अब ये सब जो हो रहा है इंटरनेट पे, ये कहाँ जाके सेव होगा? सो दैट थिंग इज कॉल्ड एज वेब सर्वर. वेब सर्वर का क्या काम है? HTTP प्रोटोकॉल को एक्सेप्ट करके उसके अकॉर्डिंग उसको रिस्पॉन्स देना. दिस थिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ वेब सर्वर. हम जब भी इंटरनेट की बात करते हैं, वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट क्लाइंट एंड सर्वर. देयर इज ऑलवेज अ कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर. सो दैट पर्पज वी रिक्वायर अ क्लाइंट मशीन जो रिक्वेस्ट भेजेगा, एंड वी रिक्वायर अ सर्वर मशीन जो रिस्पॉन्स भेजेगा. ठीक है. लास्ट HTTP, as I told you, it stands for Hypertext Transfer Protocol. ये प्रोटोकॉल इज ऑलवेज यूज्ड विथ ऑल द www पे जितना भी आप काम कर रहे हो वो काम बैकएंड में HTTP ही कर रहा है. टेकिंग द रिस्पॉन्स फ्रॉम द क्लाइंट, taking the request from the client and getting the response from the server. ये जॉब है इस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल का. ट्रांसफर करना क्लाइंट की रिक्वेस्ट टू द सर्वर, सर्वर का रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट इज डन विद द हेल्प ऑफ HTTP. Lastly, we'll be talking about HTML. Many of you might be knowing कि HTML क्या है. We'll be discussing HTML in this entire unit. जब आप वेब डिजाइनिंग की बात कर रहे हो तो मेजरली डिजाइनिंग जो वेबसाइट्स की होती है, इट इज डन विद द हेल्प ऑफ HTML itself. पर HTML काम कैसे करता है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर, that how actually HTML is working, how we are dealing with HTML. ठीक है. So first thing, HTML, I told you it stands for Hypertext Transfer Protocol. ठीक है. अब मैंने बताया कि ये इज कॉल्ड एज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. ठीक है. दिस इज नॉट कॉल्ड एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. HTML ऐसा क्या है इस लैंग्वेज में जो इसके हेल्प से हम अपने वेबसाइट्स को डिजाइन कर सकते हैं? HTML इज बेसिकली डीलिंग विद टू थिंग्स. फर्स्ट इज द कंटेंट एंड सेकेंड इज द लेआउट. ठीक है. मतलब मैं अपनी वेबसाइट पे क्या दिखाना चाहती हूँ, व्हाट शुड बी द कंटेंट ऑफ माय वेब पेज, एंड लेआउट मीन्स कि मैं उसको कैसे दिखाना चाहती हूँ अपने यूजर्स को. राइट. द वे इन विच आई वांट टू प्रेजेंट इज नथिंग बट द लेआउट, बट व्हाट आई वांट टू प्रेजेंट इज द कंटेंट. तो पूरा HTML इन दोनों मेजर सेक्शंस, मेजर वर्टिकल्स पे काम करता है. दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अब कंटेंट और लेआउट दोनों काम कैसे करेंगे. तो वील बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हाइपर एंड व्हाट इज टेक्स्ट. ये जो वर्ड है ये दो वर्ड से बना है, हाइपर एंड टेक्स्ट. ठीक है. आप जब कोई वेबसाइट को सर्व करते हो, राइट, तो दैट वेबसाइट गिव्स यू एन एक्सेस दैट द यूजर कैन गो एनीवेयर एट एनी टाइम. अगर मैं कोई वेबसाइट को एक्सेस कर रही हूँ, सो आई विल बी एट दैट, यू कैन से मुझे उतना लिवरेज मिलता है कि आई कैन एक्सेस एनी पेज ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल वेबसाइट. तो ये जो लिवरेज है, दैट लिवरेज इज गिवन विद द हेल्प ऑफ हाइपर. दैट मीन्स you as a user can access any sequence of the page of a particular website. When I say text is nothing but combination of alphabets, numbers, special symbols. Anything that comprises of alphabets, numbers, special symbols, यानी आपके कीबोर्ड पे जितना कुछ दिया है उसके कॉम्बिनेशन से आप जो भी लिखते हो, जो भी कंटेंट डिजाइन करते हो, वो सब टेक्स्ट में आता है. So this is how hypertext. And sorry, this was markup. अब मार्कअप क्या है? ठीक है. मार्कअपिंग मतलब जब आप HTML पढ़ोगे तब आपको ये समझ में आएगा कि जो भी कंटेंट आप लिख रहे हो आपके वेब पेज के लिए, देयर इज सर्टेन वेज टू राइट दैट. ठीक है. अब ये जो
हाँ HTML है, ये HTML प्रोसीजरल लैंग्वेज के अंडर आता है, राइट. प्रोसीजरल लैंग्वेजेस मतलब इट इज ऑल्सो हाई लेवल लैंग्वेज, बट प्रोसीजरल लैंग्वेज जो होती है दैट इज मेजरली फोकसिंग ऑन द स्ट्रक्चर. ठीक है, यानी अगर आपको HTML पेज यानी अगर आपको वेब पेज डिजाइन करना है तो आपको मार्कअपिंग वुड बी यूज, और वो मार्कअपिंग इज नथिंग बट द वे और अ स्ट्रक्चर टू राइट द कंटेंट. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में जो वे यूज होता है दैट आर कॉल्ड एज टैग्स. टैग्स की हेल्प से यू आर मार्कअपिंग, यू आर डिजाइनिंग. that is nothing but hypertext markup language. This is all entire HTML. okay, next class हम लोग HTML5 डिस्कस करेंगे. बिफोर दैट आई want you people to go through what is a particular website, वेब पेजेस के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं और HTML5 में क्या क्या रिक्वायर्ड है. This year you are having HTML5 in your syllabus. Now when I say HTML5, it is the latest version of HTML which is running in the market. तो जितनी डिजाइनिंग कंपनीज है वो सब लोग HTML5 के साथ काम कर रहे हैं. तो HTML5 क्या है, read that thing. What is web actually, read that thing. How is web working, read that thing. It is all given in your textbook on page number 30 and 31. So you can access your particular textbook to read, to have the understanding of how web is working. Okay, so bye for today. We'll be meeting in the next class.